All right, now focusing on cryptocurrency, all crypto prices crashed by 15% and more hours after the Indian government announced that it will introduce the cryptocurrency bill in the Parliament's winter session, which seeks to prohibit all private cryptocurrencies in the country with a few exceptions. Now, also the government will introduce the banking law amendments as well in its winter session. Now, the official document on the scheduled House proceedings on Tuesday showed that the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill is set to be introduced in the Parliament in the upcoming winter session that starts on the 29th of November. Now, the bill will prohibit all private cryptocurrencies in India with certain exceptions, and is expected to be taken up for the final consideration and passing during the winter session. Now, the government also says that the Reserve Bank of India will issue its own digital currency, and the objective is to create and facilitate the framework of creation of the official digital currency to be issued by the RBI. Right. I'm joined by crypto expert and crypto analyst Vikram Mahar, who's joining us on the broadcast. Thank you for joining us this morning, sir. Now, we're talking about the Indian government introducing a bill in the winter session to regulate cryptocurrency and also introduce its own cryptocurrency and digital currency. In fact, now tell us more about how the Indian government's initiative to issue a digital currency can benefit India's crypto market. Yeah, thank you for the invitation. Actually, since I got this news, I checked the data continuously. I'm tracking the selling pressure on the Indian exchanges is going massive. So that's why the crypto is crashing continuously. On the other hand, the government is said that they are regulating or they are not regulating it, and they are introducing their own RBI coin. It means it will be a CBDC concept. Like central digital currency. So that will be, I personally believe that will be totally a stable coin, which will be not so much volatile as like other cryptocurrency. I personally think that there is nothing like private cryptocurrency or like that. Cryptocurrency is totally decentralized, you can see. But the government wants this decentralized cryptocurrency in centralized platform. So the RBI coin will be on the CBDC concept that will be give a stability versus other currencies. As like INR will be the stable INR. So that will be the backed by the RBI or RBI assets. What is they want to like they can be backed by the total gold reserve in India or the silver reserve also, and they can backed by the INR reserve printed money. So that will be interesting to know that how the government is thinking. So far I can say that the CBDC concept will be took place, as like other countries also planning to do that. But, yeah. Right, Vikram, stay with us. We have this conversation. In fact, my colleague Abhishek has had with I beg your pardon. My colleague Ajit Srivastav has had this conversation with Akash Jindal, who's an economist. Let's listen. मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जिस हिसाब से सरकार अब सजग हुई है, अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेटरी बनने जा रही है। आखिर वजह क्या है? जिस हिसाब से अगर बात करें जिंदल साहब, क्रिप्टो करेंसी कई मार्केट में है। बिटकॉइन को भी लेकर कई चर्चा हुई थी, कई बातें हुई, कई स्कैम भी हुए, लेकिन अब सरकार जो अब रेगुलेटरी लाएगी, बिल बनाएगी, वो कैसा होगा? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके रेगुलेटर आए। देखिए, आज की तारीख में जितने भी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहां रेगुलेटर है। आप 500 रुपए की किसी बैंक में एफडी कीजिए तो वहां रेगुलेटर है आरबीआई। अगर आपको उस बैंक के प्रति कोई ग्रीवेंस है, आपको अपने राइट्स नहीं मिलते, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। सिमिलरली, आप 1000 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आईआरडीए रेगुलेटर है, जिसमें क्लियर है कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या डूज एंड डू नॉट्स हैं। अगर किसी तरीके से आपको जेन्युइन क्लेम नहीं मिलता अपना इंश्योरेंस में, तो आप आईआरडीए के पास जा सकते हैं। सिमिलरली, आप मोबाइल का 150 रुपए का प्लान ले लीजिए, अगर आपको उसमें अपने राइट्स नहीं मिलते, उसमें क्लियर है कि 150 रुपए का प्लान आपने मोबाइल में लिया है तो आपको उसमें क्या मिलेगा, क्या डूज एंड डू नॉट्स है। अगर वो आपके राइट्स नहीं मिलते तो आप टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई में जा सकते हैं।
तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी जिसमें बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स कई लोगों की हैं, उसको लेके रेगुलेटर आना चाहिए ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। पहले तो डूज एंड डू नॉट्स कि क्या उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर उसमें हो सकते हैं, कौन क्रिप्टो करेंसी इशू कर सकता है, उन सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सरकार एक बिल लेके आ रही है, तो उस बिल में क्लैरिटी आ जाएगी कि इन्वेस्टर्स को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, क्या इन्वेस्ट करना उसमें अलाउड है, कौन कौन से प्लेयर उसमें हो सकते हैं, कौन कौन क्रिप्टो करेंसी इशू कर सकता है, क्या वो सिर्फ एसेट क्लास के रूप में अलाउड होगी, शायद वो करेंसी के रूप में वहां अलाउड ना हो, कौन उसमें रेगुलेटर होगा और इन्वेस्टर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या डूज एंड डू नॉट्स होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब 150 रुपये का मोबाइल प्लान और 500 रुपये के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में रेगुलेटर है, तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉ और रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आकाश भाई, जिस साल बात करें हम, जिस साल सरकार ने हम कहें तो एक गोल्ड के लिए गोल्ड बॉन्ड निकाला था, क्या वो रेगुलेटरी है? क्या वैसा ही कुछ क्रिप्टो करेंसी में भी होगा? मेरे हिसाब से तो अब इसमें रेगुलेटर आएगा, आना ही चाहिए। क्या ये गोल्ड, मतलब मैं समझना चाहूंगा, जनता समझना चाहेगी कि जिस हिसाब से एक गोल्ड बॉन्ड लोगों ने ले रखा है, आपको भी याद होगा कि जब सरकार ने गोल्ड बॉन्ड रिलीज किया, कई लोगों ने लिया, बैंकों से लिया, परचेज किया, बॉन्ड के रूप में परचेज किया। क्या ऐसे ही कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी हो सकता है? देखिए, ये तो एक वर्चुअल करेंसी है, इसको हम उससे अलग नज़रिए से देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ आप सोने में एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक वर्चुअल करेंसी है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली अब इसमें लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि क्या इसको करेंसी के रूप में अलाउ किया जाएगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। क्लैरिटी क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, वही जनता को समझना चाहती है, क्लैरिटी क्या क्या होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो एक अभी भी औचक दर में कर रहे हैं, कहीं कोई लेके कई लोग भाग भी गए हैं, कई लोग बेचारे रोड पे भी आ गए अपने पैसे के गंवाने के बाद। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जैसे वो भी सेफ रहें और क्रिप्टो करेंसी बेचने वाला भी सुरक्षित रहे और लेने वाला भी सुरक्षित रहे? सबसे पहली क्लैरिटी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मेरे हाथ में 100 रुपये का नोट है जो आप सबकी जेब में होगा। क्रिप्टो करेंसी में शब्द आता है करेंसी। अब इस पे देखिए, 100 रुपये के नोट पे क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। हस्ताक्षर किसके हैं? आरबीआई गवर्नर साहब के। तो आरबीआई गवर्नर यहां कह रहे हैं कि हाँ, आरबीआई इसके पीछे खड़ा हुआ है, ये 100 के नोट के पीछे 100 रुपये अदा होंगे, आरबीआई गवर्नर साहब के साइन है। सिमिलरली आप और करेंसी लगाइए, अमेरिकन डॉलर जो यूएस की करेंसी है, या एक तरह से ग्लोबल करेंसी भी कुछ हद तक माना जाता है, उस पर क्या लिखा हुआ है? अमेरिका के, यूएसए के ट्रेजरर के साइन है, लिखा हुआ है कि दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। यानी कि जो आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा, उसका जवाब यह है कि हर करेंसी के पीछे वहां का सेंट्रल बैंक या सरकार खड़ी हुई है। यहां मेरा सवाल यह आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन खड़ा हुआ है, कौन इसके पीछे खड़ा है। आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करने जाता हूं 10,000 रुपए की, मान लीजिए 5% ब्याज है, तो आकाश जिंदल के पास ये राइट है कि साल के बाद जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जनाब ये आपकी एफडी है, 10,500 रुपये मुझे दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस एफडी के पीछे खड़ा है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन खड़ा है? और अगर मान लीजिए मुझे बैंक से ग्रीवेंस है किसी तरह की, तो मैं रेगुलेटर यानी आरबीआई के पास जा सकता हूं। अच्छा, बैंक की जो एफडी है रेगुलेटेड है, उसमें आरबीआई के रेगुलेशन क्लियर हैं, क्या मेरे राइट्स हैं, क्या मैं प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकता हूं, वो भी क्लियर है, क्या उस एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकता हूं, वो भी क्लियर है, क्या उसमें नॉमिनेशन कर सकता हूं, वो भी क्लियर है। तो वो कौन तय करता है? रेगुलेटर यानी आरबीआई लॉ बनाता है। तो सिमिलरली यहां पे लॉ बनना चाहिए और साथ ही साथ रेगुलेटर को आना चाहिए ताकि पब्लिक को क्लैरिटी हो। Right. Let me now rope in Vikram Mahar, who's still with us on the broadcast. So now, of course, talking about the regulation of cryptocurrency, when you compare it to the international market, several governments are in fact functioning with cryptocurrency not regulated and then allowing the market to then regulate the prices to ensure that there is, you know, private players who are coming into the market. But when then you take into contrast India's situation, when the government tries to regulate the cryptocurrency and not allow private players into it, what repercussions could it have for India's crypto market? Well, the government is thinking like all the
the private cryptocurrency in the sense like all the existing cryptocurrency, they have to eliminate from the Indian market. But the thing is happened in previous years that the government is want at this time to disengage all the investors at this point of the time. The main planning will be done by the government. We have to appreciate the government decision. But the thing that government want to introduce is such a bill where all the things is a fair. Either they could be mixed strategy, like they could integrate such as things like they put the trading in the GST or taxation, and the crypto mining will be the block. Like that kind of the scenario can happen. Now in this private cryptocurrency, if you say, there is nothing like private or government in this crypto world, honestly. So but the thing that are not controlled by the government, that's why the government is saying these are the private currencies, and they want to put away from the Indian investors, and some exceptions, some cryptocurrencies will be allowed according to their statement. Still the government have to, RBI have to say that what type of the technology they will accept. Yeah, so this is a question for the government. There are a lot of questions that they have to still clarify how the things will be further. Right, Vikram, thank you for joining us this morning and providing your insight on the story. Let's listen in to this conversation my colleague Adi Srivastav has had with economist Sharad Kohli on the story. इस समय मौजूद हूं मैं ठीक पार्लियामेंट के पास। ये वही संसद भवन मेरे पीछे है जहां पर इस बार विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उससे पहले आज के दिन कैबिनेट में इस तमाम विषयों को लेकर चर्चा भी होगा और प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या और क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान इस समय हो रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले समझना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी से फायदे और नुकसान क्या हैं, और इस बिल को जो पहले इंट्रोड्यूस होना था वो डिले क्यों? देखिए, फायदे की बात करें तो फायदा तो एक ही दिख रहा था यहाँ के 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को कि रातों रात अमीर बन जाया जाए, रातों रात पैसा दुगना तिगना चौगना 10 गुना ना जाने कितने गुना हो जाए। बस वहीं से चिंता शुरू हुई, और नुकसान भी इसी में, क्योंकि जो भी निवेश का संसाधन इस प्रकार आपके पैसे को दुगना चौगना 8 गुना 10 गुना करेगा, उतना ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी इस समय 4000 से ज्यादा दुनिया भर में फ्लोट कर रही हैं, और कुछ क्रिप्टो करेंसीज का तो माई बाप का नहीं पता है, मतलब किसने उसको फ्लोट किया। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी का फादर जो है, जिसको बिटकॉइन हम कहते हैं, आज तक इसको किसने बनाया, ये किसने इसका निर्यात किया, कुछ नहीं पता है। ऐसा माना जाता है एक सातोशी नाम के व्यक्ति हैं, थे, या कहां पर हैं भी कि नहीं है, कुछ नहीं मालूम। बस यहीं से चिंता शुरू होती है, क्योंकि इसको रेगुलेट करने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आपका एक वॉलेट फोन में बन जाता है, उसमें आपका एक आईडी और एक पासवर्ड, उसमें से आप पैसा अपना बैंक से उसमें ट्रांसफर करते हैं। एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाता है। कुछ एक्सचेंजेस हमने देखा होगा पीछे वर्ल्ड कप के दौरान बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट्स आए, जिसमें इन एक्सचेंजेस ने खूब पैसा भी दिया दुनिया भर की जगह अपना एडवर्टाइज करने के लिए। वहां पर ये लिस्ट हो जाता है। अब आप पैसा बैंक में डालते हैं, वहां से ये पैसा निकल के उस एक्सचेंज तक पहुंच जाता है। वो करेंसी में से वॉलेट में आपके आ जाता है। मान लीजिए आपने 10 खरीदे, 20 खरीदे, जितना भी खरीदा, अब वो वॉलेट मान लीजिए कल को हैक हो गया, या आपका फोन चोरी हो गया, आपने लैपटॉप पे सेव किया, लैपटॉप चोरी हो गया, खराब हो गया, बस आपके पैसे गए, क्योंकि आपके पास ना तो वो आईडी है ना पासवर्ड है, आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आई थिंक सबसे बड़ी चिंता जो गवर्नमेंट की आई, वो आई कि देखिए, करेंसी का सर्कुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये जिम्मेवारी है। मॉनेटरी पॉलिसी की कंट्रोल सारी रिजर्व बैंक के पास है, बैंकर्स बैंक कहते हैं उसको। और कितनी करेंसी इस समय भारत में करीब 30 लाख करोड़ के ये जो नोट और कॉइन्स फ्लोट कर रहे हैं। नोटबंदी के टाइम 18 लाख करोड़ थे, आज 30 लाख करोड़ है। अब मान लीजिए आरबीआई को पता ही ना लगे कि कितनी करेंसी यहां पर चल रही है, मतलब लोग रुपए की जगह अगर क्रिप्टो करेंसी से लेन देन शुरू कर दें और वो पैरेलली एक बैंक शुरू हो जाए बगैर किसी के पता लगे, तो वो कतई अलाउ नहीं किया जा सकता। ये अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में नेफेरियस एक्टिविटीज कहते हैं। और इसमें टेरर फंडिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग पेडलिंग है। यहीं से प्रधानमंत्री जी की चिंता शुरू हुई, और 21 से 35 साल के लोग
हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी, जब आप किसी बुजुर्ग आदमी को कहते थे क्रिप्टो करेंसी का, तो वो तो पीछे हट जाता था, भैया रिस्की लगता है। पर यंग लोग, क्योंकि उनके मन में अमीर बनने की चाहत बहुत जल्दी है, बहुत फटाफट अमीर बन जाए, वो लोग ज्यादा इस तरफ जुड़े। 10 करोड़ करके ऐसी संख्या होती गई। 60 से 70 हजार करोड़ ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इस समय क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसलिए बड़ी अमाउंट है कि अनरेगुलेटेड है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं। अगर मान लीजिए आज मेरे वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती है, तो मैं किसी को जाके कह नहीं सकता। आपको अगर बैंक से शिकायत है, आप रिजर्व बैंक के पास जाएंगे। आपको शेयर से शिकायत है, आप सेबी के पास चले जाएंगे। आपको अगर इंश्योरेंस से शिकायत है, आप IRDA के पास चले जाएंगे। पर अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप किसी के पास नहीं जा सकते। आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, आप अपने नुकसान को माथा पकड़ के रोते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है इसी चिंता की वजह से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया। हालांकि थोड़ा देर से आया, मुझे लगता है 4000 करेंसीज और इतना बड़ा अमाउंट जब निवेश हो चुका है, थोड़ा और पहले आता तो और अच्छा होता था, पर देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये मानता हूं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.